हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरी क्लास फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से क्वेश्चन 4 नीट चौका नंबर 1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजिशन थ्रू 1 सेंटीमीटर। Find the work done by the spring force on the agency compressing the spring. 2.5 millijoule minus 2.5 millijoule, 5 millijoule minus 5 millijoule. Question number 2. A particle of mass 20 gram is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time of particle goes up. Minus 2.0 joule, 2.0 joule, 1.0 joule minus 1.0 joule. Question number 3. A pendulum bob has speed 3 meter per second while passing through the lowest position. What is the speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? The length of pendulum is 0.5 meter. G is 10 meter per second square. Option है 3 meter per second, 0, 2 meter per second, 2.5 meter per second. Question number 4. A block of mass m attached to a spring constant K oscillates on a smooth horizontal table. The another end of the spring is fixed to the wall. If it has a speed v when the spring is at its natural length, how far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? V m upon k, v k upon m, v by 2. Solution. Question number 1. A spring of spring constant 50 Newton per meter is compressed from its natural position through 1 centimeter. Find the work done by the spring force on the agency compressing the spring. 2.5 millijoule minus 2.5 millijoule, 5 millijoule minus 5 millijoule. Spring constant K is equal to 50 Newton per meter. Compression 1 centimeter or x is 1 centimeter or 1 into 10 to the power minus 2 meter. एक spring, one side fixed, इसकी natural length, this natural length, suppose this is L. इसको compressing force F, ये compression करती है, suppose this is x and x is 0 1 centimeter x. Finally this comes here. जब ये फोर्स F प्रोवाइड होती है तो ये स्प्रिंग इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इम्पोज करती है और फाइनली जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तो बोथ बिकम्स सेम. सपोज फोर्स provided by spring is suppose F1. Potential energy
of spring half k x square, half k is 50 into 1 into 10 to the power minus 2 pi square, 25 into 10 to the power minus 4 joule, or 2.5 into 10 to the power minus 3 joule, or 2.5 millijoule. जो फोर्स F है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन है x, दिस इज, इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। इसका मैग्नीट्यूड x। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स F1d कोस थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस, तो माइनस Fd। दिस जो F1d इज इक्वल टू 2.5, दिस इज माइनस 2.5 मिलीजूल। तो वर्क डन बाय द force, spring force is minus 2.5 joule. B is correct option. Question number 2. A particle of mass 20 gram is thrown vertically upward with a speed 1.0 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time of particle goes up. Minus 2.0 joule, 2.0 joule, 1 joule, minus 1 joule. Mass m is 20 gram, or 20 into 10 to the power minus 3 kg. यहाँ दिस इज ग्राउंड, यहाँ से इसको थ्रो किया जाता है अपवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड। u इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनली h हाइट पर पहुँचता है और इसकी स्पीड बिकम्स 0, v इज 0। तो हाइट h और दिस इज h, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ये फॉर्मूला। v स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, s इज इक्वल टू h, और 20h इज इक्वल टू 100, और h इज इक्वल टू 5 मीटर। ये 5 मीटर हाइट तक जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट Pe, जो Ke होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो Pe इज इक्वल टू Ke इज इक्वल टू 1/2 मास 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर, और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 2, दिस कम्स 1 जूल। जो जब ये ऑब्जेक्ट, इसकी मोशन ऊपर की तरफ है,
इस पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड एंड फोर्स इज डाउनवर्ड. तो वर्क डन बाय gravity force of gravity वो होगा F डॉट डी और एफ डी कोस, इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री, दिस इज माइनस एफ डी. कोस 180 डिग्री इज माइनस एफ डी, दिस इज एफ डी इज इक्वल टू force is mg and this is displacement is h, mgh और minus mgh is potential energy at highest point minus 1 joule. Work done by the gravitational force is minus 1 joule. D is correct option. Question number 3. A pendulum bob has 3 meter per second speed while passing through the lowest point. What is the speed when it makes an angle 60 degree with the vertical? The length of the pendulum is 0.5 meter, z is 10 meter per second square, 3 meter per second, 0, 2 meter per second, 2.5 meter per second. सपोज एक पेंडुलम यहाँ से इसको लटकाया गया है इस लोएस्ट पॉइंट. फाइनली ये मोशन कर रहा है इस तरह से और जब 60 डिग्री पर है दिस फ्रॉम वर्टिकल, इसकी स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड. u is equal to 3 meter per second. यहाँ से एक परपेंड ये अगर जैसे ए बी सी, यहाँ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सपोज दिस इज डी. इस बेस पॉइंट से दिस इज हाइट एच, सपोज दिस इज ई. अगर इसी को हम डार्टम लाइन या ग्राउंड लाइन मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एम जी एच और एम जी एच की हाइट है 0, दिस इज 0. काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और 1/2 एम इंटू 3 का स्क्वायर और 9/2 एम. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 0 plus 9/2 m is equal to 9/2 m. Now at C, kinetic energy at C, suppose यहाँ पर speed is v
potential energy at C. Potential energy at C. डाटम लाइन जो है, दिस इज डाटम लाइन या ग्राउंड लाइन, यहाँ से H हाइट पे है, तो ये होगा mgh. काइनेटिक एनर्जी at C is equal to half mv square. Mechanical energy at C mgh plus half mv square. For conservation of mechanical energy at C will be equal to at mechanical energy at B. So mgh plus half mv square is equal to 9/2m. m से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 और हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 माइनस gh, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो v स्क्वायर इज 9/2 gh इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 10 h 9 माइनस 20 h v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1. अब h कैलकुलेट करने के लिए जो लेंथ है दैट इज 2.5 मीटर, तो AD होगा, AD इज इक्वल टू AC cos 60 डिग्री, AC है 0.5 और cos 60 इज हाफ 0.25 मीटर. BD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू H और BD होगा AB माइनस AD. AB है 0.5 मीटर, इसमें से 0.25 मीटर, दिस कम्स टू 0.525 मीटर. तो BD या H की वैल्यू आ जाती है H इज इक्वल टू 0.25 मीटर. H की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, 1 में पुट कर दी हमने. v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इंटू 0.25, 9 माइनस 5 4, v इज इक्वल टू 4 का रूट 2 मीटर पर सेकेंड. जो v की वैल्यू होगी दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड. सी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 4. A block of mass m attached to a spring of spring constant K oscillates on a smooth horizontal table. The another end of the spring is fixed to a wall. If it has speed v when spring is at its natural length, how far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? Vm upon K, Vk upon m, v/2. सपोज स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और ये जो है ऑब्जेक्ट m मास का से बंधा है, ये मोशन कर रहे हैं
सपोज एट प्रेजेंट ये नेचुरल लेंथ है, इसकी नेचुरल लेंथ पर है L, यहाँ पर स्पीड इज V, सपोज दिस इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, एक्सट्रीम पोजिशन सपोज दिस इज X, पोजिशन A, पोजिशन B। पोजीशन ए पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक at A is half mv square. This is total energy at A. Potential energy of spring at B, जब वो एक्सट्रीम एक्सटेंशन होगा उसका तब पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/2 kx²। दिस काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो 1/2 kx², 1/2 mv², हाफ से हाफ क्रॉस हो गया। x² इज इक्वल टू mv²/k और x इज इक्वल टू v m/k अंडर रूट। एक्सट्रीम एक्सटेंशन होगा जब वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होगी तो उसकी एक्सटेंशन की वैल्यू होगी Vm/k, Vm/k अंडर रूट। बी इज करेक्ट ऑप्शन।